कोविड-19 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शहनाज रजा। नए कोरोना वायरस SARS-CoV-2 से फैली कोविड-19 महामारी से जहां एक तरफ पूरी दुनिया में अप्रत्याशित व चुनौतीपूर्ण स्थिति बनी हुई है, वहीं वैज्ञानिक एवं शोध संस्थानों द्वारा इससे निपटने की तैयारियां भी जोर शोर से चल रही हैं। इसी क्रम में भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान यानी कि आईसर पुणे के शोधकर्ताओं ने अपनी विशेषज्ञता का उपयोग करते हुए ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वायरस बड़ी तादाद में कैसे बढ़ता है, इसकी वृद्धि पर काबू पाने के क्या उपाय हैं और इसके नैदानिक परीक्षण के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। इस दिशा में कार्य जारी रखते हुए आईसर पुणे के वैज्ञानिक द्वारा पेप्टाइड आधारित नैदानिक विधि पर शोध किया जा रहा है। वहीं कार्बन नैनोट्यूब आधारित सर्विलांस डायग्नोस्टिक उपकरण, इसके साथ ही ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड जांच विधि, फ्लोरेसेंस आधारित परीक्षण के अलावा कई अन्य प्रकार के तरीकों पर कार्य किया जा रहा है। कोविड-19 के इलाज के लिए जहां एक तरफ नई दवाओं की खोज की जा रही है, वहीं कुछ दवाओं के पुनरुद्देशित इस्तेमाल को भी आजमाया जा रहा है। शोधकर्ता इस नए कोरोना वायरस की इमेजिंग के द्वारा इसकी प्रकृति को जानने और मनुष्यों के साथ इसके संपर्क को बेहतर ढंग से समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही कोविड-19 रोग जनन के अध्ययन के लिए चूहों में ACE2 रिसेप्टर म्यूटेंट पैदा कर रहे हैं और कोविड-19 संक्रमण द्वारा रोगग्रस्त चयापचय मार्गों का अध्ययन भी किया जा रहा है। शोधकर्ताओं की एक टीम वायरस के प्रसार मॉडल का भी अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें संक्रामक रोगों के हॉटस्पॉट मैप का निर्माण किया जा सके, जिससे कोविड-19 महामारी से संबंधित आगे की योजना और नीति बनाने में मदद मिल सकेगी। इन सब के अलावा आईसर पुणे के वैज्ञानिकों द्वारा सही जानकारी के प्रसार करने और जनता में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार की पहल की जा रही है। आईसर पुणे में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अर्नब मुखर्जी का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। So actually, I am a computational chemist and biophysicist. So I work on computational aspects of drug design. So I have worked on designing new molecules by writing a program to target specifically the spike protein that is there on the cover of the virus. So if I target that and if I make a molecule that can bind very strongly to the spike protein, then probably it will inhibit the interaction with the human protein and thereby stop the spread. That is the hope. So on that we have worked in our this work we have worked on that. So this means that a lot of people have solved the structures of the spike protein. You know the spike protein. So in the viral membrane there are spikes, and those are actually proteins. Now top part of those spike proteins actually go and bind to the human ACE2 receptor. So let's say this is a human protein, this is the virus protein. They go and bind. After it binds, then the RNA of the virus gets inside the human cell. Now, if we can make a molecule, another species that can bind to this virus, then it will not be able to bind here, and therefore it might stop the spread. So that is the hypothesis of the work. Now we write a program to generate molecules from scratch. You know, a molecule is made of atoms. So we start with atoms, and atom by atom we build a molecule such that that molecule will have strong interaction with the viral protein or any protein. This is a very general program. We apply it to this spike protein. Once we generate that, we hope that it will bind so strongly that this protein will no longer be able to bind to the spike protein. So this is totally computer driven research. And then what we did is that we tested the binding strength by computer simulations. There's something called very enhanced sampling method or metadynamics method that can calculate the free energy or strong binding to the protein. So that we have validated that how strong it is. However, computationally, we have validated computationally, but we need to also validate experimentally, and that will be taken up by collaborators. पुणे स्थित CSIR राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला यानी कि NCL के वैज्ञानिकों ने ऐसे मास्क विकसित किए हैं जो कि पार्टिकुलेट मैटर और बैक्टीरिया को दूर भगाने में सक्षम हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये मास्क वायरस से रोकथाम में भी उपयोगी साबित हो रहे हैं।
इसके साथ ही पॉलीप्रोपिलीन मेडिकल ग्रेड कपड़े से बने इस मास्क को एनसीएल द्वारा पेटेंट किए गए बैक्टीरियल नैनोसेल्यूलोज सॉल्यूशंस में डुबोया गया। इस मास्क में उपयोग किए जाने वाले पदार्थों को टीम के सदस्यों द्वारा महज 3 सप्ताह के अंदर ही तैयार कर लिया गया। मास्क के प्रोटोटाइप का परीक्षण साउथ इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन यानी कि SITRA द्वारा किया गया है और पार्टिकुलेट मैटर और एक मानव रोगजनक स्टेटोफिलोकोकस ऑरियस को फिल्टर करने में प्रभावी पाया गया है। अल्कोहल का छिड़काव करके इस मास्क को धोया जा सकता है और इसे 4 दिनों तक इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इस मास्क का निर्माण पुणे स्थित सेटलैब इंडिया द्वारा किया जाएगा। शुरुआत में एक दिन में 5000 ऐसे मास्क तैयार किए जाएंगे, जिन्हें आने वाले दिनों में 1 लाख तक बढ़ाया जा सकता है। इसे लेकर CSIR NCL पुणे में प्रिंसिपल साइंटिस्ट डॉक्टर सईद जी दस्तगीर और डॉक्टर महेश धारने का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। ये मास्क ऐसा स्पेशल पॉलीमर हमने यूज किया है। हम पॉलीमर पे लगभग लास्ट 3 या 4 साल से हम काम कर रहे हैं। जब पॉलीमर बोलते हैं, सेलुलोज ही मेजर दिमाग में आता है और सेलुलोज मेजरली प्लांट से प्रोड्यूस होता है। और उसमें क्या होता है, जब प्लांट से प्रोड्यूस होता है तो इसके साथ 2-3 और कॉम्बिनेशन रहते हैं, ये इंडिविजुअल नहीं रहता है। हेमीसेलुलोज और लिग्निन के साथ आता है। अब जब आप सेलुलोज को प्यूरिफाई करते हो तो आपको एसिड ट्रीटमेंट करना पड़ता है और वो परिसर के लिए हानिकारी है। जब एसिड ट्रीटमेंट करोगे और एसिड को बाहर एक्सपोज करोगे और डिस्चार्ज करोगे तो वो फिर एनवायरमेंटल पे पोल्यूशन क्रिएट करेगा। जो हमने इसके लिए हमने अल्टरनेट तरीके से बैक्टीरिया से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्या बहुत सारे 2-3 बैक्टीरिया जो नॉन प्रोड्यूस करते हैं सेलुलोज को, सिंस सेंचुरी से काम कर रहे हैं उस पर, बट हमने ऐसा बैक्टीरिया ढूंढ निकाला है जो अल्टरनेट है। और जब बैक्टीरियल सेलुलोज प्रोड्यूस करता है तो 100% प्योर सेलुलोज प्रोड्यूस करता है और उस सेलुलोज को हमने नैनो मटेरियल सब कुछ जानते हैं कि ये एंटी बैक्टीरियल और एंटी फिल्ट्रेशन करते हैं, तो हमने उसका कॉम्बिनेशन लेके नॉर्मल क्लॉथ पे हमने कोटिंग करके लैब में पायलट स्केल पे हमने उसको स्टडी किया है। सबसे इम्पोर्टेंट 2 टेस्ट हैं। पहली टेस्ट है बैक्टीरियल फिल्ट्रेशन एफिशिएंसी, जो कि देखता है कि बैक्टीरियन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो फिल्टर फेस मास्क पे पास ना हो पाए। और दूसरी टेस्ट ये है कि पार्टिकुलेट फिल्ट्रेशन एफिशिएंसी। ये इसका यूज क्या है? अभी हमने देखा है कि WHO की गाइडलाइन है कि ये जो वायरस पैंडेमिक चल रहा है तो ये कैसे फैल रहा है, क्योंकि एयर में जो ह्यूमिडिटी होती है, ड्रॉपलेट्स होते हैं, माइक्रो ड्रॉपलेट या मैक्रो ड्रॉपलेट, उस पे ये सवार होके पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन हो सकता है। तो क्योंकि हमें पता है कि ये वायरस को खुद का ऐसा जीव नहीं है, उसको कोई तो सेल चाहिए या कोई व्हीकल चाहिए कि जिस तरीके से वो हवा में या वातावरण में फैल सके। तो सित्रा ने क्या किया है कि उन्होंने स्टेफिलोकोकस ऑरियस जो स्टैंडर्ड ATCC कल्चर है, उसके साथ उन्होंने बैक्टीरियल फिल्ट्रेशन एफिशिएंसी चेक किया एंड उनको ये करीब 99.9% तक का एफिशिएंसी मिला। मतलब क्या, तो ये फेस मास्क जो है वो ऑलमोस्ट 100% फिल्ट्रेशन रोकता है। मतलब वो आपके मुंह या नाक तक नहीं पहुंचने था, वो आपके मास्क पे ही उसको रोका देता है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं ने उन्नत PPE किट का विकास किया, जो सस्ती होने के साथ ही कोरोना वायरस के खिलाफ चिकित्सकीय सेवा में स्वास्थ्य कर्मियों के लिए IIT दिल्ली के कपड़ा और फाइबर इंजीनियरिंग विभाग द्वारा विकसित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण कोविड-19 से लड़ाई में भी महत्वपूर्ण साबित होगा। इस PPE किट में इंटीग्रेटेड बॉडी सूट और शू कवर शामिल हैं। ये PPE किट 99.5% से अधिक जीवाणुरोधी गुणों को रखती है। बाजार में मिलने वाले सामान्य PPE किट में ये विशेषता कम ही होती है। इस किट के बाहरी सतह पर पानी और तेल का कोई असर नहीं पड़ेगा। विशिष्ट ग्रेड PU कोटिंग भी इस किट की एक विशेषता है। ये बॉडी सूट ऐसा है जिसको 3 बार उपयोग किया जा सकता है। IIT में इसे विकसित करने वाली टीम ने दावा किया है कि बाजार में मिल रही 500 ग्राम वजन तक की किट के मुकाबले ये काफ़ी हल्की है। इस किट का वजन मात्र 300 ग्राम है। शोधकर्ताओं ने इस किट के उत्पादन के लिए GD इंटरनेशनल नामक कंपनी के साथ सहयोग किया है, जो हर महीने 1,20,000 किटों का निर्माण करेगी।
IIT दिल्ली में एमिरिट्स प्रोफेसर डॉक्टर SM इश्तियाक का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। COVID-19 has brought a lot of attention to our country. At the same time that institution like IIT Delhi has also noticed this important issue, and we started working in the Department of Textile and Fiber Engineering at IIT Delhi and developed a advanced this PPE kit that is called coverall kit for the use of doctors, nurses and paramedical people working in the hospital. Now this advanced coverall has a certain novel features that as required that first that we try to bring the protection against the penetration of the virus, and equally that we thought of to improve the breathability of the fabric, जो कि अपने में बहुत इंपॉर्टेंट इशू है कि जब वेयरर यूज कर रहा है तो उसको भी कंफर्ट फील होना चाहिए। तो एक हम लोगों ने एक इक्विलिब्रियम बनाने की कोशिश की है कि इसको हम प्रोटेक्ट करें कि वायरस पेनिट्रेट ना हो, एट द सेम टाइम यूजर जो है कंफर्ट फील करे वाइल वियरिंग इट। तो इससे ये होगा कि एक लॉन्गर पीरियड के लिए जो है डॉक्टर्स उसको यूज कर सकते हैं विद good level of comfort. Secondly, another important issue जो हम लोगों ने इसमें इंट्रोड्यूस किया है कि that we made this fabric which is anti-bacterial. आज के इस अंक में बस इतना ही। बुलेटिन कोविड-19 के अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहिए, हाथों की स्वच्छता के साथ ही मास्क का समुचित उपयोग करते रहिए और हमें दीजिए तब तक के लिए इजाजत। नमस्कार।